Namaste and good afternoon. I am Susan from Apollo Hospitals, Gandhinagar. Good afternoon. I'm Dr. Shanti Bhushan. Sir, today, as we know that monsoon brings with us a very fresh start in the season, a lot of people get relief from the scorching heat and dryness. And now, as we know, is monsoon, the season of rains, comes with us breeding of mosquitoes, which causes dengue and waterborne diseases like typhoid. So today we have with us Dr. Shanti Bhushan, a consultant of critical care, who will be discussing with us regarding dengue and typhoid and also how we take care of ourselves in this pandemic of COVID-19. Thank you, sir, for joining with us today. Thanks for inviting me here. Thank you very much. So as we know, every year at this time, there is monsoon season and we have these two fatal diseases, that is dengue and typhoid. So in times like this, where we have a pandemic, what you would like to suggest our viewers? Over the years, we have been seeing dengue fever, and malaria and typhoid during this monsoon seasons. This time around, it's altogether a different ball game. We all aware that we are currently facing this pandemic of coronavirus. It becomes altogether a different ball game now, that because a lot of symptoms overlap between this corona and typhoid, dengue, malaria. So it becomes challenging as a clinician for us and for the general population as well, because as of now, we for last 3 months, our country, the world has been struggling, fighting against this new virus. Potential of having two more or three more similar diseases with fever and related symptoms, things are going to get more challenging for everyone. Yes, sir. So can you tell us what is dengue? What are the causes of it? Dengue fever has been around for many years now, especially 10 years it has become taken a lot of limelight. It is a viral fever caused by the virus is transmitted by the mosquito, and these mosquitoes, the breeding conditions, they peak, their growth peaks, their number peaks during this monsoon season. Now, this virus is transferred from one human to other human by this mosquito, particularly the Aedes aegypti species of the mosquitoes. And symptoms of dengue fever are, they usually start with fever. Most of the people will get some rashes as well. Their platelets usually drop. Again, it's a immune mediated disease. So likewise, few of the complicated cases where we get other organ involvements also. But primarily, most of the people will have fever, myalgia, body ache, joint pains, and rashes. So that is dengue. Last year we had a very huge outbreak of this disease, particularly in the state where I practice, in Gujarat, and a lot of people were affected. And there are certain conditions, the dengue shock syndrome, which is a feared complication, having a very high mortality as well. So that's about, in a nutshell, about dengue. जो जैसे आपने साइन और सिम्टम्स के बारे में बात किया है, तो वो कौन सा समय को संपर्क करना चाहिए या हॉस्पिटल आना चाहिए अगर उसको डेंगू होता है तो? डेंगू फीवर से स्टार्ट होता है. फीवर इज वेरी हाई ग्रेड फीवर, 103, 104, बहुत तेज बुखार आ रहा है. यू आर नॉट एबल टू टेक ओरली, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, इनटेक आपका कम हो रहा है, फीवर की सिवियरिटी बढ़ रही है, साथ में रैशेज हो रहे हैं शरीर पे, इसमें ब्रेन में भी असर होता है, कॉन्शियसनेस एनकेफेलाइटिस बोलते हैं. सो और भी डेंगू है, फीवर है, साथ में आपके शरीर का कोई भी दूसरा हिस्सा ऑर्गन इन्वॉल्व होने लगे, तो वो टाइम है कि आपको इमीडिएटली हेल्प लेनी चाहिए. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी इन दिस सीजन, any fever, if it is not subsiding in a 2 to 3 days, and it is and resulting in having a poor appetite, vomiting हो रहा है, घर पे मैनेज नहीं कर सकते, इट्स वाइजर और समझदारी इसमें है कि जल्दी से डॉक्टर का ओपिनियन लिया जाए
एंड जल्दी से जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है मेनली, लेकिन वो भी टाइमली शुरू हो पाए। थैंक यू सर। हम लोग जैसे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते होंगे कि डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं आज के दिन में डेंगू और कोविड के बीच में, और कोई टेस्ट है जो ज़रूरी है जो करवा सकता है पेशेंट ये डेंगू और कोविड के बीच में डिफरेंस के लिए पता करने के लिए? ये एक नया चैलेंज आने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी हम एक नए वायरस से डील कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद अ न्यू डिजीज, एंड प्रॉब्लम दोनों के सिम्टम्स जो हैं, लक्षण जो हैं, उनमें काफ़ी ओवरलैप भी है। दोनों वायरस से होते हैं, दोनों में बुखार आता है, एंड कुछ लोगों की सांस की तकलीफ डेंगू में भी होती है, बट ब्रीथिंग डिफिकल्टी इज मच मोर प्रिडोमिनेंट इन द कोरोना वायरस डिजीज कोविड। एंड इसके अलावा जैसे रैशेज हैं, रैशेज हम कोरोना वायरस में इतना नहीं देखते हैं। प्लेटलेट ब्लड टेस्ट की बात करें तो प्लेटलेट्स हैं, तो प्लेटलेट का ड्रॉप इतना नहीं है जितना डेंगू फीवर में होता है कंपेयर टू कोरोना वायरस फीवर। थ्रोम्बोस जो ब्लड टेस्ट में है, एक रिमार्केबल फाइंडिंग जो कोरोना कोविड डिजीज में है वो है कि उसमें लिम्फोसाइट्स, लिम्फोपीनिया बोलते हैं, देयर नंबर एक्चुअली सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस। उसके बाद इफ इन डाउट वी हैव टू गेट द टेस्ट डन। फॉर्चुनेटली दोनों के टेस्ट अवेलेबल हैं, डेंगू के सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, डेंगू के IgM IgG टेस्ट हम करते हैं, बरसों से अवेलेबल हैं, एंड NS1 एंटीजन भी है जो कि क्विक टेस्ट है उसका, विद इन फ्यू आवर्स हम उसका रिजल्ट रिपोर्ट मिल जाती है। सिमिलरली अगर लक्षण ज़्यादा कोविड के हैं, कोविड-19 के हैं, तो उसका स्वैब टेस्ट करते हैं, इमेजिंग करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। सो इन टेस्ट्स और क्लिनिकल हमारे जजमेंट के हिसाब से हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एज अ लेमैन, एज अ जनरल पॉपुलेशन, हमको फीवर है, फीवर को इग्नोर नहीं करना है, पर्टिकुलरली इन दिस सीजन। एंड फीवर के साथ शरीर के और भी कोई लक्षण आ रहे हैं तो इमीडिएटली अर्लीस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें, दैट इज योर बेस्ट चांस। यस सर। और ये डेंगू से प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या कर सकते हैं लोग? डेंगू अनलाइक कोरोना, जो कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन, एक इंसान से दूसरे इंसान में सांस के द्वारा, ड्रॉपलेट्स के द्वारा, एरोजोल के द्वारा या सरफेस कंटामिनेशन से फैलता है, जो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट। डेंगू बरसों से इज नोन है, वन स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज इज रिस्पॉन्सिबल। मच्छर का कंट्रोल करना है, मॉस्किटो का कंट्रोल करना है घर में जहाँ पे भी। और ये जो एडिस इजिप्टी मच्छर जो पर्टिकुलरली डेंगू के लिए फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो साफ पानी की जगहों में पनपता है, दिन के टाइम पे ज़्यादा दिखता है। तो घरों में जहाँ पे एयर कूलर्स हैं, जहाँ पे स्टेशन पानी है, रुका हुआ पानी है, पानी के फूल के गमलों में, फ्लावर बेसिस में, these places we have to be careful, and of course mosquito repellents, sprays, ये सब हमको इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरा है कि लास्ट ईयर देयर वाज अ न्यू वैक्सीन डेवलप्ड, बट इट इज स्टिल इन अर्ली स्टेजेस फॉर डेंगू फीवर। सो मे बी इन अ ईयर और टू वो ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल होगा एंड वो ज़्यादा एक्सेसिबल होगा। टिल देन मच्छर का कंट्रोल करें एट एनी कॉस्ट, मच्छर मॉस्किटो बाइट्स को अवॉइड करें किसी भी कीमत पे, एंड जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं वो लेना है। कोरोना के लिए हम सबको पता है कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। आई वॉज वेयरिंग अ मास्क बिकॉज आई एम अलोन इन दिस रूम नाउ, so I have taken off my mask, but you have to be, whenever you are in a place where you are surrounded by other people, मास्क लगाना ना भूलें, डिस्टेंस रखना ना भूलें। पर्टिकुलरली किसी को खांसी है, ऐसे लोगों से या छींक रहे हैं, इनसे डिस्टेंस रखना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो ये दोनों में डिफरेंस है प्रिकॉशन में या बचाव के लिए। हाँ सर, अभी बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। आप टाइफाइड के बारे में बता दीजिए कि क्या डिफरेंस है, कितने टाइप्स ऑफ टाइफाइड है और क्या कॉज करता है टाइफाइड? डेंगू, कोविड, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों वायरस के डिजीजेज हैं, वायरस की बीमारियां हैं, और दोनों के लक्षण जो होते हैं उनके बॉडी पे असर और बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के कारण या इम्यून रिस्पॉन्स के कारण ज़्यादा उनके लक्षण आते हैं।
जो टाइफॉइड है इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया जो कि हमारे खाने के रास्ते में हमारे शरीर में घुसता है विद फूड, और फीको ओरल रूट बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, कि ये दो टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। सैल्मोनेला टाइफी, दैट इज वन, एंड सेकंड वन इज द सैल्मोनेला पैराटाइफी और सैल्मोनेला एंटेरिका इज द न्यूअर नेम। These two bacterias have been responsible. ये जो स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया है, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहती है, लोगों इंसानों के इंटेस्टाइन में रहती है, एंड जो हमारे स्टूल के रास्ते बाहर जाती है, एंड देन व्हेन दिस स्टूल कंटामिनेट्स ड्रिंकिंग वाटर और एनी अदर सरफेस, और फॉर दैट मैटर एनी अदर थिंग, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, when it enters through हमारे माउथ को टच करते हैं, या ये contaminated पानी या खाना हम खाते हैं या पीते हैं, तो that is the route it enters the body, हमारे शरीर में एंटर होता है, एंड ये बैक्टीरिया जाके हमारे इंटेस्टाइन में within 2 to 3 weeks they propagate, then they find their way into the blood, इंटेस्टाइन से वो खून के में ट्रांसमिट होते हैं, एंड एक बार जब वो शरीर में फैलता है तो उनके जो लक्षण आने शुरू होते हैं। टाइफॉइड बिकॉज ये पानी के रास्ते या गंदे पानी के रास्ते या कंटामिनेटेड फूड के कारण होता है, सो उसका प्रेवलेंस भी ये मानसून के सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे जैसे कंट्रीज़ में। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जहाँ पे सुविधाएं थोड़ी कम हैं, एंड तो मानसून के सीजन में इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, इट बिकम्स वेरी रैम्पेंट, एंड आज के टाइम में भी दुनिया भर में 1.5 से 2 लाख लोगों की जान हर साल जाती है इस बीमारी के कारण। सो प्राइमरीली एक बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में घुसते हैं, वहाँ पे पनपते हैं, फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, और ये फिर शरीर के दूसरे हिस्सों को असर करना शुरू करता है। सबसे कॉमन लक्षण है इसका फीवर, बुखार हफ्तों तक चल सकता है इस बीमारी में, और कई बार बहुत क्लियर लक्षण नहीं होने के कारण इसकी डायग्नोसिस जो है, इसका जो निदान है वो मिस हो जाता है, कई बार पता नहीं चलता है। सो दैट इज द डिफिकल्टी। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, विद लेफ्ट अनट्रीटेड 1 in 5 पीपल मे नॉट सर्वाइव। फॉर्चुनेटली पिछले कई वर्षों में इसका इलाज एंटीबायोटिक्स वगैरह अवेलेबल है हमारे पास, और इसके कारण हम इसकी जो डेथ रेट्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, काफ़ी हद तक कम कर पाए हैं। ये फिर से एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारे इंटेस्टाइन्स को, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलावा शरीर के बाकी ऑर्गन्स को भी असर कर सकती है, ब्रेन को असर कर सकती है। कई बार इसमें सर्जिकल इमरजेंसीज भी आती हैं कि भाई ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिला तो इंटेस्टाइन में, आंतड़े में अल्सर्स बन जाते हैं, एंड दे गेट परफोरेटेड, होल हो जाता है, तो इमरजेंसी में सर्जरी वगैरह भी करनी पड़ती है। सो इट हैज़ अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड समटाइम्स बुखार कभी तेज होता है, कभी नहीं भी होता है, तो उसको पकड़ पाना, डायग्नोज कर पाना भी कभी कभी मुश्किल होता है। फिर भी अगर किसी को भी लक्षण हैं ऐसे, बुखार आना, पेट की गड़बड़ी होना, डायरिया होना, लूज मोशंस होना, या फिर कॉन्स्टिपेशन भी होना, तो इस सीजन में सबसे ज़्यादा उनको तुरंत डॉक्टर की ओपिनियन लेनी चाहिए। देयर आर ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे कि हम इनको तुरंत डायग्नोज कर सकते हैं, ब्लड कल्चर्स कर सकते हैं, विडाल टेस्ट हैं, एंटीबॉडीज सीरोलॉजी टेस्ट आर अवेलेबल, तो उनके द्वारा इसको हम डायग्नोज इजीली कर पाते हैं आजकल। दूसरी समस्या है टाइफॉइड में आज के ज़माने में कि पहले ये सिंपल एंटीबायोटिक्स से रिस्पॉन्ड करते थे। ओवर द इयर्स वी आर नाउ सीइंग लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू यूजुअल एंटीबायोटिक्स आल्सो। सो हमारे लिए एक क्लिनिकल चैलेंज भी है। बट जैसा मैंने शुरू में कहा कि आज के टाइम में कोरोना काल जो आजकल बहुत कॉमन टर्म है, कोरोना काल में एनी फीवर, एनी इन्फेक्शन इज़ अ चैलेंज। सबसे पहला सस्पिशन आज के टाइम में लोगों का कोविड के बारे में होता है, बट ऐसा नहीं हो कि हम कोविड के चक्कर में ये जो पुरानी जो एग्जिस्टिंग बीमारियां जिनका पूरी तरीके से इलाज संभव है वो मिस हो जाए। तो हमारे डॉक्टर कम्युनिटी के लिए भी और जनरल पॉपुलेशन के लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर ऐसे लक्षण हैं तो उनको ध्यान से बताया जाए और तुरंत डॉक्टर की सलाह ली जाए।
हाँ सर, ये टाइफाइड जो बीमारी है इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है उसकी? टाइफाइड एक तो क्लिनिकल, हम लोग क्लिनिकली देखते हैं पेशेंट के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, प्रेजेंटेशन क्या है, सो दैट इज वन क्लिनिकल पार्ट। कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट हैं जो सीरोलॉजिकल मार्कर्स हैं उसके, दोनों साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी दोनों टाइप्स के लिए करते होते हैं। एंड अभी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कल्चर्स वगैरह भी हम उनके लिए करते हैं। सो ये ब्लड टेस्ट कंफर्म करते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये बीमारी है, एंड उसका ट्रीटमेंट जो एंटीबायोटिक्स हैं, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स हैं, उसके हिसाब से इलाज करते हैं। एक अच्छी बात है, आई थिंक मुझे ऐड कर देना चाहिए कि टाइफॉइड के वैक्सीन अवेलेबल है, देयर आर वैक्सीन अवेलेबल फॉर टाइफॉइड, ऑल्दो दे आर नॉट फुली इफेक्टिव, 100% गारंटीड इफेक्ट जैसा नहीं है, बट दो तरीके के वैक्सीन हैं, एक इंजेक्शन की तरह लेते हैं, एक मुंह से लेते हैं, कैप्सूल जैसा होता है। 3 साल में रिपीट करने की बात होती है इंजेक्शन वाले के लिए, और जो ओरल फॉर्म है वो हर साल लेने की बात है बच्चों में, या फिर ऐसे लोगों को कि जो नॉन प्रिवेलेंट एरिया में ज़्यादा रहते हैं, वहाँ से टाइफॉइड के प्रोन जगह पे जा रहे हैं या अनहाइजीनिक कंडीशन में रहने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत एडवाइजेबल है कि ये वैक्सीन अगर पॉसिबल है तो लेना चाहिए टाइमली। जी हाँ सर, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि टाइफॉइड मोस्टली ओरोफिकल रूट से जाता है, तो जो आरओ वाटर है वो क्या सेफ है, और अगर सेफ है तो क्या आरओ वाटर को बॉईल करने की ज़रूरत पड़ती है? आरओ वाटर जो है जब वो तुरंत फिल्टर होके निकला है, इट इज़ 100% सेफ, नो प्रॉब्लम्स। बट यही आरओ वाटर हमने कहीं स्टोर करा हुआ है, कहीं पे कंटेनर में रखा है, एंड वो कंटेनर किसी भी कारण से कंटामिनेट होता है या बहुत समय तक रहता है या क्लीन नहीं होता है, सो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो आरओ वाटर एज सच इज गुड इनफ, सफिशिएंट है, बट अगर वो लंबे समय तक स्टोर्ड है किसी जगह पे, वो कंटेनर या जगह क्लीन होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए, और सारे प्रिकॉशंस लिए हुए होने चाहिए। स्टिल अगर आपको कभी भी डाउट है तो ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट टाइफॉइड, कि अगर डाउट है कि भाई लंबे समय से कोई फिल्टर्ड वाटर किसी कंटेनर में रहा है, तो उसको एक बार फिर से बॉईल कर लेना समझदारी है। जी हाँ सर, अगर टाइफाइड की बात करते हैं तो प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं हम लोग ताकि टाइफाइड ना हो? जैसा हमने डिस्कस किया कि टाइफॉइड होने का जरिया कॉमन है, स्टैंडर्ड है, देयर इज नो अदर वे टाइफॉइड स्प्रेड्स। वो किसी मच्छर के काटने से नहीं आता है या किसी दूसरे जीव से हमारे शरीर में नहीं आता है, इट्स अ ह्यूमन टू ह्यूमन डिजीज, एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में जाता है। इट्स जो प्रिकॉशंस हैं, इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल हाइजीन इशू रादर देन एनीथिंग एल्स। तो इंटेस्टाइन में रहता है, मल के रास्ते, स्टूल के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है, एंड दोज उसका और हमारे खाने के में कहीं कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल। सो सपोज आप बाहर खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो मेक श्योर इट इज हॉट एंड स्ट्रेट फ्रॉम द ओवन, स्ट्रेट फ्रॉम द सीधा तवे से तला हुआ निकले, गर्मा गर्म हो, यू आर फाइन। कहीं पे ओपन में स्टोर रखा हुआ खाना, स्ट्रीट फूड है पर्टिकुलरली इस सीजन में, यू मस्ट अवॉइड। दूसरा है कि अगेन हम आजकल हैंड हाइजीन के बारे में एवरीवन इज वेरी मच अवेयर थैंक्स टू कोरोना कोविड डिजीज। So hand hygiene is again equally important, if not more, in typhoid prevention. So that should be done. Anyone who is handling foods or drinks for other people in the service industry or at home or anywhere, they should be, खाना को हैंडल करने से पहले हाथ धोना कंपलसरी है, जरूरी है, करना ही चाहिए। और तीसरी बात है कि आप वेजिटेबल्स खरीद के लाते हैं, मेक श्योर इट इज वॉश्ड इन क्लीन वाटर, वॉश प्रॉपरली, गंदे पानी में कहीं कंटामिनेट ना हो गया हो, इसका ध्यान रखना है। सो गर्म खाना खाना है, स्वच्छ पानी पीना है, और हाथ अच्छे से धोना है। तो ये मेन प्रिकॉशंस हैं। हाँ सर, जैसे हम जानते हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस अभी आ रहे हैं
और बहुत सारे इन्फेक्शंस के कॉमन साइन और सिम्टम्स फीवर और बॉडी पेन्स ही है। तो हम आप व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हो? फीवर बीमारी नहीं है, फीवर लक्षण है। फीवर जो है हम कोई भी बीमारी से हमारा शरीर जब लड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम जब रिस्पॉन्स करता है, उसका एक कॉमन मैनिफेस्टेशन है कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। इधर वो फीवर इन्फेक्शन वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो, किसी से भी हो, सीजन के हिसाब से, प्रिवेलेंस के हिसाब से और बाकी क्लिनिकल जो हम एक डॉक्टर एग्जामिन करने पे पता करते हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो किसी भी फीवर को अगर खास करके 2-3 दिन से ज़्यादा लंबा चल रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, 102, 103 जैसे हाई टेम्परेचर आ रहा है, एंड पर्टिकुलरली इसके साथ और भी लक्षण हैं, जैसे सांस की तकलीफ हो रही है, रैशेज आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, या फिर आपके कॉन्शियसनेस लेवल कम हो रही, ऐसे कोई भी लक्षण है तो आपको डिले नहीं करना है, तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी है। ज़्यादातर बीमारियां अभी भी ट्रीटेबल हैं, सही समय पे इलाज मिले तो। एंड इवन वायरल डिजीजेस लाइक कोविड ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट बेटर विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो टाइमिंग ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको होशियार रहना है, हमको सावधान रखना है कि इग्नोर नहीं करने हैं लक्षण, और जैसे भी होता है तुरंत सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। बस ये करें तो ज़्यादातर लोगों को बहुत तकलीफ नहीं आएगी। थैंक यू सर, आपने अपना बहुत समय हमारे लिए निकाला है। एंड व्यूअर्स, वी आर स्टिल इन अ पैंडेमिक एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. Do not let water stay stagnant and keep social distancing and wear masks. Stay home and stay safe. Thank you. Thank you very much. Thank you.